टाइम टू स्ट्रेंथ मानती हूँ. Yes. मतलब वुमेन Already empowered. एम्पावर्ड. मतलब वुमेन में इतनी स्ट्रेंथ है ना कि वो कुछ भी काम कर सकती है. Yes. एट एनी एज शी कैन डू. बट वो विल पावर होना चाहिए उसमें. हाँ. और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. और मैं यही सबको बोलूंगी कि आप हिम्मत मत हारो. कोई भी चीज आपको पसंद है, हाँ. कोई भी एज में कोई भी चीज पसंद है, उसके पीछे भागो. आपको अगर कार ड्राइविंग करना है, कुछ सीखना है या कुछ एक्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, आप उसके पीछे इतना भागो जब तक आपको मिल नहीं जाए चीज, तब तक उसके पीछे भागो. तब तक जब तक सक्सेस आपके पीछे ना भागे. पीछे ना भागे तब तक नहीं चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि मैं हर चीज के गलत के खिलाफ हूँ. बिल्कुल. क्योंकि आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट आल्सो. Yes. हर चीज मतलब गलत के खिलाफ हूँ मैं. कुछ भी गलत हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ. मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगी. एक बार एक सेट पे था, डायरेक्टर कोई लेडीज को गाली दे रहा था. हाँ. तो मुझे नहीं दे रहा था और दूसरी फीमेल्स को गाली दे रहा था. मैंने सर प्लीज टॉक इन अ डिसेंट मैनर, वी आर फीमेल्स. कल तो ये एक पैशन हो गया है कि ये क्राउन मिलते हैं, ये इतना मतलब आपको इतना चार्जेस करो, आपको क्राउन देंगे. मतलब आजकल पैसे का खेल हो गया है. यस यस. मतलब पहले जैसे नहीं रहा कि मतलब पहले प्रॉपर्ली देते थे क्राउन. अभी तो हर एक जगह पे सिर्फ मनी है. मैं एक पारसी लेडी बनी थी. हाँ. उसमें एक लड़का मतलब आया था कि मतलब मैम मतलब इजी से मतलब ओ माय गॉड आपको देख के मतलब ये हुआ कि आप तो इतने फैट थे, आप इतने स्लिम हो गए, आपसे मिलके बहुत मजा आया. मतलब वो ऐड करने में बहुत अच्छा लगा. हाँ. एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड प्लीज आगे बढ़ते रहो और अच्छे काम करते रहो. Some people earn fame, some people earn respect, and very few rare creatures on this earth maintain both of them, right? क्या rhyming हुआ है? While quietly they change lot of lives. So today on the Meenakshi Talk Lounge show, with your host Meenakshi Pange, we have with us Pooja Gangwani ji. She is close to the mother nature. She loves lot of dogs. She feeds lot of animals, and she also does lot of social work other than animal feeding. She does a lot of temple vlogging, and that gives us lot of blessing because we all hardly get time due to the routine. But she makes sure that through her vlogging, she keep us blessed from the God. So she is the one who let her get connected to the divine nature. So thank you so much for sharing all those vlogs. And by the profession and by the passion, she is the actor, she is the model, and you can see that from her age, right? She's timeless. So Pooja ji, thank you so much for coming here and enlightening this place with your positive aura. So how have been your journey throughout, and you would like to share something about your journey? Yeah, my journey is very good. Like from the beginning, I used to like acting. Yes. Like from childhood. हाँ. मतलब my passion was acting. Yeah. So like, but my father was very strict. He didn't allow me to do acting. Then after some years, like I was in 12th standard, my mummy expired. Oh. So because of that, I was married early. Then I thought कि my dreams are shattered. Now I'm not able to do anything after my marriage. So I was in 12th only. I got married. Then after that, after my marriage, I did my graduation. When my daughter was in 5th standard, I did my graduation. Acha. I told my husband, I told my husband कि I want to complete my graduation anyhow. Yeah. Because I fought my father also. कि पापा मतलब I want to complete my graduation. So he told no, you have to be married because I have only one brother and I was one daughter. Yeah. So my papa was businessman. Acha. So he was very busy in touring and all. हाँ. So that was I was married early. Yeah. So after marriage, my journey starts that way. Wow. Yeah. But you have fought at that era where girls were not allowed to study. So it would be very difficult for you to just get the basic education during that time because तभी यही कहा था कि यार क्या करना है तुमको ससुराल जाके काम कर चूल्हा चौका करना है. And that era you fought for yourself, and that is what we should clap for because that time I think I can relate because मेरी मम्मी भी आज होती तो आपके एज की होती और I can feel her pain because she was 10th भी drop out थी वो.
तो मुझे ऐसा लगता है कि शी कुड हैव डन बेटर, and you are an inspiration for such females, and during these age also, like there are a lot of females who are unprivileged, and you fought for yourself and you are the inspiration for them as well. So that's very really great. Pooja ji, how have been your journey? Like how did you fall into place into acting, pageant show, and then the social work? So would you like to give some clarification and the balancing that you maintained in all the, and you, in fact, you didn't maintain a balance, you rocked everywhere. Yeah. So would you like to share about it? Yeah, like when I was married, so like I did my graduation. Then one of my husband's friend, he told me to give some photos of mine because he liked me, as a Model. So, as a model. Then Yes. like I made my portfolio. Then I gave to different places. Then I did acting, I did serials, I did ad films, and like that way I did आपने मूवीज भी करी है, मैंने आपकी देखी थी, वो आप गाड़ी उड़ा के जा रही थी at your young age. So I would love to hear about that as well. Which movie was that? Yeah. No, there are many, like I don't know. नहीं, मैंने वो वाली मूवी देखी थी आपकी, तो I just want to hear about it. I've done many, like serials तो मैंने बहुत सारे किए हैं. हाँ जी. और मूवी मतलब एड्स भी किए मैंने. हाँ जी. तो इतने किए हैं, मतलब अभी मुझे नॉर्मली याद भी नहीं है. हाँ. इतने किए हैं मैंने अभी. नहीं, मैंने आपकी काफी होर्डिंग्स भी देखी है. और आई थिंक यू आर सच एन इंस्पिरेशन कि यू आर नॉट गिवन अप एट एनी एज. तो यू आर जस्ट, नो, एज इज जस्ट अ नंबर. या ट्रू दैट. नहीं, और आपका जो प्रेजेंस during the pageant show, because we were together for the India Brainy Beauty, and वहाँ पे हमने जब देखा आपके जलवे, that made me, अरे नहीं, इनको तो बुलाना चाहिए. मतलब तभी मैंने पॉडकास्ट का तो सोचा ही नहीं था, बट मैंने कहा कहीं भी तो बुलाऊंगी मैं इनको. नहीं, आपकी जिंदा दिली मुझे बहुत पसंद आई थी उस टाइम पे. नहीं, life we get once. Yes. So we have to enjoy every moment. Yes. See, now is uncertain. Life is uncertain. So we have to enjoy every moment, whatever it comes, however it comes. Yes. So we have to enjoy. True. So we have to not give up. Yeah. So I will tell everybody, like, don't run after your dreams. Don't give up. Run after the dreams. Yeah, definitely. So you can fulfill any dreams. Pooja ji, when you look at your childhood, then what dreams you had that little Pooja had? Would you like to share that dream? Yeah, dream was I want to become a big actress. Like मुझे बहुत बड़े एक्टर बनना था, मेरा यही था. अच्छा. फोकस. Yes. कि मुझे बहुत, मतलब बचपन से मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था. तो मुझे यही था कि मुझे एक्टिंग करनी है. हाँ जी. किसी भी हालत में. तो मेरा ड्रीम वही था कि मुझे एक्टिंग करनी है, मीन्स करनी है. हाँ. और जो अच्छे काम है वो मेरे पापा से मुझे संस्कार मिले, और पापा को दादाजी से मिले. हाँ, तो ऐसे मतलब हम लोग का चलता गया. हाँ. तो फिर मैं एक्टिंग के बाद में भी मैं ये सब, मतलब आई एम इनटू 3 NGOs. यस. तो अच्छे से काम करते हैं उनके साथ में. कैंसर अवेयरनेस है, एक स्माइल सेशन है. ओके. हाँ. तो आप इनका भी संस्था संभालते हैं. हाँ. मतलब आई एम अ मेंबर इन दैट. कैंसर अवेयरनेस, ओके, फाउंडेशन. वन इज स्माइल सेशन फाउंडेशन, दैट इज फॉर स्पेशल किड्स. ओके. या. And one is Ashray Foundation. They also do lot of good works. So I am member in that. Okay. But they do lot of good works. तो मुझे भी मौका मिलता है कुछ अच्छा करने के. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है. इसके अलावा भी इनके कुछ शौक है, शौक नहीं, मतलब इनकी जो प्रोफेशन है, ये बहुत अच्छी फेस रीडिंग करती है. ये मेरे फेस को देख के पहचान गई कि मैं कैसी हूँ. ठीक है. तो वो आपने कब सीखा? प्लस आप टैरो रीडिंग भी करते हैं. तो आप कुछ बताएंगे हमारा फ्यूचर क्या है हमारे टॉक लॉन्च शो का? बहुत ब्राइट है. क्यों? बस हम धन्य हो गए. क्यों आप ब्राइट बोल रहे हो? मैं आपको, क्योंकि आप है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. यस. आप मतलब एकदम बिंदास हो, मतलब मन से बोल देते हो. आप डरते, तारे जमीन पे था ना, बिंदास. आप डरते हो किससे भी? नहीं, आप जो आपके मन में आप बोल देते हो. हाँ, नहीं, डरना तो सीखा ही नहीं मैंने. एक्चुअली मेरे विरासत में मेरे को मेरे डैड ने डरना ही नहीं सिखाया. वो मेरे लिए कभी कभी ये हो जाता है, बट वो नहीं, हमें डरना नहीं है. जब कोई चीज राइट हो तो मैं हमेशा राइट को ही सपोर्ट करूंगी, भले ही वो उसका वैल्यूएशन बहुत कम हो झूठ के कंपैरेटिवली, बट मैं राइट को चूज करूंगी. तो शायद इसलिए वो प्योरिटी रहती है. लेकिन मैं तो आपके लेफ्ट बैठी हूँ, तो आपने मुझे कैसे चूज किया?
नहीं, आप लेफ्ट बैठे हो बट आप राइट हो। ऐसे तो मैं भी लेफ्टी हूँ, बट मैं लेफ्ट हैंड से सारी राइट चीज वाली चीजें करती हूँ। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा। तो मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में, आपकी जो ये जो हुनर है, ये आपको कभी एहसास हुआ कि मैं स्पिरिचुअली बहुत मेरे पास वो एक बोलते हैं ना अवेयरनेस है कि मैं लोगों को पहचान सकती हूँ बहुत अच्छी तरह। और ये जो साइकोलॉजी रीडिंग है आपकी फेस के थ्रू, तो आप वो कैसे कर लेते हैं कि क्या सोचते हैं आप किसी को अगर एक बार में देखते हैं तो क्या मेंटालिटी से आप उनको डिफाइन करते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और कैसे वो करते हैं ताकि हम भी कुछ सीख पाए लोगों को? क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम हो जाता है, मैं लोगों को नहीं पहचान पाती, तो वो एक मैं सबको है ना बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में बहुत धोखे होते हैं। बहुत नहीं, धोखे तो मैंने भी खाए। हाँ जी, 2018 में मैंने इतने धोखे खाए जितने बादाम भी नहीं खाए। अरे फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैं इतने धोखे खाए जितने बादाम भी नहीं खाए। अरे बाप रे। तो मतलब मैं बहुत आई एम वेरी इमोशनल, मैं बहुत रोती थी। मतलब मैंने बोला कि मतलब इतने लोग मेरे साथ में ऐसे कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मतलब बहुत मुझे दुख होता था। उसके बाद मैं तो बहुत पूजा प्रार्थना करती थी, मैं गॉड से कनेक्ट हूँ, मैं गणपति को बहुत मानती हूँ। हाँ जी, मैं गणपति की सेवा करती, सिद्धिविनायक में जाके सेवा भी करती थी मैं, मतलब मैं काफी मंदिरों में सेवा भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हाँ, सेवा करना। नहीं वो तो आप बोले ना आप संस्कार में आपके हाँ, है। संस्कार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिरों में सेवा करना, मतलब सिद्धिविनायक में, शनि मंदिर में बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ जी, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान ने मुझे ही चुना है। आपने शिव जी को भी पहन के रखा है यहाँ पे। शिव जी को पहन को ये मतलब हाँ, मतलब सब टैटू भी देखेंगे आप, वही मतलब है हाँ एक्चुअली ये महामृत्युंजय जहाँ पे राम मंत्र किया है। माय गॉड, मेरी अभी नजर गई है। हाँ, मुझे तो गूज़बम्प्स आपको देख के आ रहे हैं कि मैं सीरियसली डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो गई हूँ। And I think we are all blessed. My place is blessed because of yes, very blessed. yes. Thank you. बहुत ही अच्छा। तो आप जो आप मैं अब पूछना चाह रही थी वो बार-बार वापस वही पूछ रही हूँ। तो आप टैरो रीडिंग और फेस रीडिंग में कब आए? कब आपको लगा कि हाँ मुझे 2018 के बाद में मैंने किया। अच्छा, हाँ, जब मैंने बहुत धोखे खाए, जब मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे साथ में हर्ट किया मुझे, हाँ, तो मैं सोचती, मैं बहुत पूजा प्रार्थना करती थी, बहुत मैं रोती भी थी। तो मैं क्या करूं, मैं खुद टैरो कार्ड करने जाती थी, अपना टैरो कार्ड करने जाती थी। अच्छा, हाँ, मतलब इसके पास में गई, आज इसके पास में गई, ऐसे मैं खुद अपना टैरो कार्ड करने जाती थी। ओके, कि प्लीज मतलब कोई तो अच्छा बोले मेरे लिए, कोई तो अच्छा बोले, लेकिन जो टैरो कार्ड में होता है वही बोलते हैं। हाँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं बोला अगर मैं टैरो कार्ड किसके पास में अपना कराने जाती हूँ, इससे मैं क्यों नहीं सीखूं? हाँ, तो आपने फिर उससे तो इससे मैंने सीखा, इस एज में सीखा आपने नया, मैंने टैरो कार्ड सीखा। और मैंने मतलब ये किया कि मतलब चलो टैरो कार्ड सीख रही हूँ, मैंने रेकी हीलिंग किया, टैरोट किया, मैंने स्विच वर्ड्स किया, स्विच कोड्स किया, मैंने मित्तल कोटक से किया। अच्छा, हाँ, ओके, मतलब स्विच वर्ड, स्विच कोड्स ये मित्तल कोटक से सीखा, और ममता कुकरेजा के साथ मैंने ये अपना टैरोट सीखा मैंने। ओके, हाँ, तो मुझे काफी मतलब क्या, मुझे टैरोट कर डिफरेंट टैरोट करने का बहुत अच्छा लगता था। सब लोगों का मैं बोलती थी आओ ये टैरोट करते, आओ, सबको बुला के मैं उनका टैरोट देखती थी। हाँ जी, मतलब फैमिली में भी कि चलो आओ टैरोट करते हैं, मतलब मजा आने लगा बहुत, और अलग अलग चीजें मालूम पड़ने लगी इस टैरोट से। हाँ, मतलब बहुत मतलब सब लोगों का मालूम पड़ने लगा कि लोग कैसे है। हाँ, लेकिन अब मैं बोलती हूँ अगर कोई आपसे बहुत मीठा बात करता है, आपको लगता है अरे वाह कितना मीठा बात करता है, कितना मुझसे प्रेम है, लेकिन नहीं, मैं आपको बोलूंगी जो जितना ज्यादा मीठा है ना उससे थोड़ा दूर ही रहिए। हाँ, जो जितना ज्यादा मीठा होता है ना उतने अंदर से बहुत शुगर कोटेड होता है वो सारा, शुगर कोटेड। इससे अच्छा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं दिल से बोलती हूँ, मन से जो भी आता है मैं बोल देती हूँ। लोग मुझे बहुत समझते हैं पूजा बहुत गुस्से वाली मैं हूँ, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं है, पहली बात। यस, दो गुस्से वाले एक साथ मिल जाए तो बहुत चार चांद लग जाते हैं, चार चांद गुस्से पे। तो मुझे क्या एकदम झूठ पसंद नहीं है, मुझे जो शुगर कोटेड पीपल वो पसंद नहीं पसंद। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, हाँ, क्योंकि सच एक बार बोलना पड़ता है, झूठ 100 बार बोलना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि एक ही बार बोलो, सच बोलो, वो ज्यादा अच्छा है। सही बात है। नहीं, एक ही बार सच बोलो, वो अच्छा है। आई अग्री विद दैट, आई टोटली अग्री, बिकॉज आई अलाइन विद दैट एनर्जी के है ना, आप है ना साफ बात कर दो, मैम नहीं हो पाएगा, मैं वीडियो आधे घंटे पे नहीं दे पाऊंगा, तो मैं बोल के हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर तो 3.25 मिनट में हम दे देंगे, और फिर वो 3.25 मिनट के बाद वापस आप पूछ रहे हो अरे 3.5 मिनट में दे देंगे, अगले 3.5, और उसके बाद में दिया जाएगा आधा घंटे बाद। तो ऐसा मत करो, है ना।
मतलब आपके लिए नहीं था, मतलब मैं तो ऐसी एग्जांपल में मेरे को और कुछ सोचा ही नहीं सामने आप दिखे तो। और 3.25 मिनट क्या होता है, 3.25 क्या होता है, ये कल मेरे मीडिया वाले ने मुझे बोला, मुझे याद है 3.25 मिनट में दे देंगे। 3.25 क्या होता है, और वो 3.25 के बाद मैं फोन भी कर रही हूँ ये जैसी। नहीं, इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी बोलना है स्ट्रेट Straight फॉरवर्ड, सच बोल दो। किसी को फॉल्स एक्सपेक्टेशन में मत। हाँ, किसी को मतलब अगर आप नहीं कर सकते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि नहीं कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत जन का मैंने टैरो कार्ड भी किया और मैं चार्जेस नहीं लेती हूँ। अच्छा, मेरा फीस यही है कि फीड अ डॉग और फीड अ वाओ, दैट्स काउ। सो क्योंकि गुड कॉज। मतलब मैं सोचा चलो इस बहाने किसी का अच्छा करने जाए, लेकिन कभी कभी ना अच्छा करने से भी लोग बुरा समझने लगते हैं। अगर हम फ्री भी करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि क्या फ्री करे, ग्रांटेड लेते हैं। अभी बहुत जन का मैंने किया टैरो कार्ड, बहुत जन तो खुश भी हो गए, मुझे आशीर्वाद भी दिया कि आपने बहुत अच्छा किया। मैंने बहुत जन भी क्या है ना, जिसका टैरो कार्ड करते हो तो वो तो मुझे एलिगेशन लगाते हैं कि अरे तुमने ऐसा बताया, आपने ऐसे बताया, आपने ऐसे बताया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बात करना छोड़ देते कितने लोग बताओ। तो मैं बोला ये क्या है, मतलब सच बोलना इतना पाप हो गया अभी। देखो मतलब मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए मैं सच बोलना पसंद करती हूँ। सही बात है, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ कि भाई यही है आपके टैरो कार्ड में, आपको प्लीज संभल के चलना पड़ेगा। आगे कुआं है पीछे खाई है, तो संभल के चलो। कभी आऊँ मैं अपॉइंटमेंट लेने? मैं पूरी टीम को लेकर आऊंगी, सबका पढ़ के बताओ, फिर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करेंगे कि कौन सा अच्छा मुहूर्त है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम आपके मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ कुछ पढ़ते हैं। आपके फैमिली में जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे मॉडलिंग एक्टिंग में जाना है, मतलब आपकी जो मैरिड लाइफ के बाद ही आपने शुरू किया ना, तो कैसा रिएक्शन था उनका और आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? नहीं मतलब मेरे हस्बैंड को किसने बोला था कि मेरा फोटो देने के लिए, तो पोर्टफोलियो दिया उनको। हाँ जी। ऐसे में आगे बढ़ी, फिर तो उनकी ओपननेस थी। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब अलाउ सपोर्ट किया। मेरे फादर वाज अ सिक पर्सन, मेरे मदर शी अलाउड मी, बट एट अ यंग एज शी डाइड, सो मतलब आई वाज नॉट एबल टू डू दैट टाइम। आई वाज इन 12th standard. Then I got married. Then my husband he supported me. Well, I did acting, I did serials, I did. Very few husbands are like that. I जिनके नहीं support करते. I did graduation. See how she is flaunting now. And positivity से हम कितने ग्लो होते हैं वो हम आपको देख के समझ सकते हैं। तो प्लीज ऐसे हस्बैंड्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप अपने वाइफ को सपोर्ट कीजिए या फिर अपने स्पाउसेस को सपोर्ट कीजिए जो भी साइड के हैं, क्योंकि वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं और वो उनका आर्ट है, तो उनके आर्ट को भी सपोर्ट कीजिए। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मुझे मतलब मैं 12th में थी, मुझे कुछ भी खाना बनाना भी नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा ही आता था। मतलब अपने एज में क्या ही मम्मी मतलब 12th में थी, जस्ट 18 साल की। सोचो ना, मेरी मम्मी बेचारी मेरे हाथ में सब देती थी खाने के लिए, एक जाता नहीं था। और शादी करके गई तो हम लोग एक ही कास्ट के थे, लेकिन खाने में डिफरेंस होता ना। तो मेरी मदर बोलती हम तो ऐसे खाना बनाते हैं, मैं बोला मुझे तो आता ही है, ऐसे करके सीखी। यू नॉट बिलीव, मैंने पूरा कुकिंग कोर्स कर लिया। चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, पंजाबी, थाई, मैक्सिकन, एवरी चॉकलेट्स, ऐसे एवरीथिंग। दिल में दर्द हो रहा है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक and some women also it goes through stomach. नहीं बिल्कुल, I agree on food part. I'm always there with you. और खाना तो मेरा बोलते ना जन्म से खाने का अधिकार है, बनाने का नहीं। बनाने का मेरी जो मेड है ना वो करती है। I am thanks to her for all the support that she provides. What was your first break and how did you feel it? मतलब जो पहला प्रोजेक्ट आपने किया? मैंने पहले सीरियल किया। अच्छा। हाँ, सीरियल में मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली, मतलब मुझे बुलाया गया सेट पे। मेरा अपना कौन सा सीरियल था वो? अभी सच्ची बताऊं इतने सीरियल्स I know. मतलब ये भी नहीं है, बहुत अच्छा सीरियल था। उसमें मुझे पता भी नहीं था कि एक क्या करना है वहाँ पे। तो मैं गई, मुझे बोला आपका शो ऑन द शो वाज स्क्रिप्ट देते हैं पूरा। स्क्रिप्ट दिया, मुझे ये डायलॉग बोलना है, तो मैं तो बुलाया डायरेक्टर सर। तो मुझे नेक्स्ट लेडी बोली, मैं बोला तो मैं अब पूछ रही हूँ उनसे, मैं तो खुश होके बोल रही हूँ। तो कोई अपना डायलॉग बोलो, चले जाओ। लेकिन मुझे तो हंसी मजाक करने का शौक है। डायरेक्टर या कोई भी हो, अपना तो हंसी मजाक तो वो तो रहता ही है, वो तो हमारा टीआरपी है हमारा। लेकिन फिर सीरियल मैंने बहुत सारे किए, लेकिन सीरियल में क्या था,
सुबह 7 बजे जाने का था, रात को 3 बजे आने का था। बहुत मेरे- hectic है। हाँ, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम सीरियल ऐसे करोगी, ऐसे एवरीडे 7 बजे जाओगी, 3 बजे तो नहीं चलेगा। नहीं, और मेरा हेल्थ भी पे तो- भी इम्पैक्ट हाँ, होता है। हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, प्लस मेरे हस्बैंड भी मतलब फिर हाँ, खाने पीने का भी खाने सब पे प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने बोला सीरियल्स कम करूंगी, मैं बोला ऐसे सीरियल करूंगी जो टाइमिंग्स मुझे सूट हो जाए। सूट हो। बराबर। तो इसलिए मैंने फिर एड्स के थ्रू ध्यान दिया कि एड्स करूंगी तो एड्स 1 या 2 दिन का होता है। हाँ, तो ये मैंने फिर एड्स के थ्रू ही एड्स के ज्यादा थ्रू किया। आपने। तो कोई ऐसा एड जो बहुत लोगों को एकदम स्ट्राइक करे कि हाँ आपका जो फेवरेट है, हाँ। कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक इजी स्लिम था। हाँ। मतलब उसमें मैं एक पारसी लेडी बनी थी। हाँ, उसमें एक लड़का मतलब आया था कि मतलब मैम मतलब इजी स्लिम, मतलब ओ माय गॉड, आपको देख के मतलब ये हुआ कि आप तो इतने फैट थे, आप इतने स्लिम हो गए, आपसे मिलके बहुत मजा आया। मतलब वो ऐड करने में बहुत अच्छा लगा हाँ, कि मैं पारसी लेडी बनी हूँ। नॉर्मली मुझे यही रोल मिलता था, पारसी लेडी या हाईफाई लेडी, हाँ, रिच लेडी, हाई वही फाई। रोल हाँ, वो आपका मुझे फील ही वैसा आता है आपको वही देख के। मुझे मतलब या तो बॉलीवुड वाइब्स का Bollywood, फीलिंग हाँ, आता है। या तो फॉरेन रिटर्न, वही सब मुझे Yes, yes. मिलते थे सब। Are there any some misconception about glamour industry जो आपको लगा हो कभी? Yeah, in some places like they tell us like Compromise. yeah, हाँ, so तो ये आपको उस जमाने में फेस हाँ, हुआ? अभी ये मैं आपको क्या लगता है ये जमाने में ज्यादा होता है कि पहले ज्यादा था? नहीं, ये जमाना वो जमाना बात ऐसी नहीं है। अच्छा। कोई भी हो, मतलब आदमी का नेचर ही वैसा है। हाँ। मैं आपको बोलूंगी। और वो तो मेरे पहचान में थे कोई जिनके साथ में मैं ऑडिशन के लिए गई थी। उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, एक सीरियल था उनके लिए मैं गई थी। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा तो मैंने सीधा उनको बोल दिया कि आपके मदर और आपकी वाइफ रेडी है क्या? तो फिर मैं रेडी हूँ। ओह माय गॉड, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस पे बोल दिया। बहुत बढ़िया किया। पर आपको नहीं लगता क्योंकि अभी बरनाली जी भी आई थी और उनके साथ भी मेरा ये डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने बोला कि दे गिव यू अ वे कि हाँ आप जा सकते हैं एंड देयर इज नो फोर्स, बट जो नए कमर्स न्यू कमर्स हैं, ठीक है, और जो वल्नरेबल हैं बच्चे, न्यू जनरेशन, जैसे हम अपने बच्चों को ले लें, अगर वो जा रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, तो अगर उनको ये ऑफर दिया गया और वो गुमराह हो गए तो डोंट यू थिंक ये हमें एस्केलेट करना चाहिए, ये हमें रिपोर्ट करना चाहिए? हाँ, हमें तो रिपोर्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं हर चीज के गलत के खिलाफ हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट आल्सो। यस, हर चीज मतलब गलत के खिलाफ हूँ मैं। कुछ भी गलत हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगी। एक बार एक सेट पे था, डायरेक्टर कोई लेडीज को गाली दे रहा था। हाँ, तो मुझे नहीं दे रहा था और दूसरी फीमेल्स को गाली दे रहा था। मैंने सर प्लीज टॉक इन अ डिसेंट मैनर, वी आर फीमेल्स यस, एंड डोंट टॉक लाइक दिस। नहीं, बट डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर थे। ये तो आप सेट की बात कर रहे हैं। हाँ। आई थिंक पैजेंट इंडस्ट्री में ये बहुत होता है, हमने खुद फेस किया है। फेस किया है, बहुत होता है, लेकिन हम लोग को उस पर एक्शन लेना है, जरूरी है। बट जब आपको पता है कि हाँ अभी हमारे विनिंग पोजीशन आ रहा है और यहाँ पे ये लोग ऐसे हरास कर रहे हैं, हम ऐसे वो बोलते हैं ना गले में हड्डी जैसा अटका होता है, हम बोल भी नहीं पाते, निगल भी नहीं पाते, वैसे सिचुएशन हो जाती है। और आई थिंक वी हैव फेस दैट इन कॉमन। और मैं जैसे फर्स्ट मैंने क्राउन 2018 में मेरे को फर्स्ट क्राउन था मिसेस मुंबई का। यस, तब ये नहीं था। आजकल तो ये एक पैशन हो गया है कि एक क्राउन का ये क्राउन मिलते हैं, ये इतना मतलब आपको इतना चार्जेस करो आपको क्राउन देंगे। मतलब आजकल पैसे का खेल हो गया है। यस यस, मतलब पहले जैसे नहीं रहा कि मतलब पहले प्रॉपर्ली देते थे क्राउन। अभी तो हर एक जगह पे सिर्फ मनी है, टैलेंट का कुछ ये ही नहीं है। टैलेंट का कुछ है ही नहीं, बिल्कुल, सब अपना बेनिफिट देखते हैं। ये तो बहुत एक्सप्लॉयटेशन होते हैं ये। और आई थिंक देयर हैज टू बी सम कमिटी जो सेंट्रली मैनेज करे इन सबको एज एन HR, ठीक है, जो है ना इन सबको ट्रैक करे कि कहाँ पे कुछ पॉलिसी ब्रेक हो रही है, कुछ कॉम्प्रोमाइज या ये सब बोल के किसी का मिसयूज हो रहा है। और सेंट्रलाइज कुछ कमिटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम वॉइस रेज कर पाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। जैसे कॉर्पोरेट में तो फिर भी HR होते हैं। हाँ, नहीं, आजकल मैंने देखा है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर एक ऑफिस में भी ये सब चल रहा है जो आप बोल रहे हो ना, ये सब ऑफिस में भी। पर वहाँ पे पॉलिटिक्स को एक्ट होता है। हाँ, तो हम अगर चाहे तो हमारे पास वो पावर होती है वोट की कि हम जाके कंप्लेन करें। और मैंने 2 जगह करी भी है कंप्लेन, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। 2 बंदों को निकलवाया है मैंने मेरी कंपनी से बिकॉज ऑफ देयर मिसकॉन्डक्ट। एंड दैट राइट यू हैव इन दी कॉर्पोरेट
Yeah. बट इन दिस इंडस्ट्री खुल्लम खुल्ला प्रोड्यूसर्स और Yeah. डायरेक्टर्स पूछते हैं आपको Yeah. कॉम्प्रोमाइज करोगे क्या, बट वी डोंट हैव एनी चैनल टू रिपोर्ट दैट. Yeah. So I want something should be set up in the society to protect those vulnerable people, and I will stand for it. And I think even you are of that character जो आप हाँ, उस मैं बात को straightforward हमेशा हूँ, हाँ. ये करेंगे, और हम ऐसा कमिटी शायद खुद ही बना ले ऐसे women. And you'll not believe they ask in message कि आप बिकनी शूट करोगे, आप टैटू शूट करोगे. मैं बोला व्हाट इज दैट टैटू शूट? टैटू? हाँ, मैंने बोला वो क्या होता है? बोला मतलब कुछ पहनना नहीं, सिर्फ पूरे बॉडी पे टैटू होना चाहिए. बोले मैं पूरे भगवान का टैटू लगा के हाँ. आऊंगी मेरे बॉडी पे. मैंने ये बोला कि मैंने बोला एक बार आप देखो भी तो रिस्पेक्ट से आप देखोगे. चल टैटू शूट क्या होता है? टैटू, मैंने बोला वो क्या बाप होता रे. है? तो मैंने उनको बोला एक बात पूछूं आपसे, मैं बोला आपकी मदर और आपकी वाइफ रेडी है, आपकी सिस्टर रेडी है? तो फिर मैं रेडी हूँ उसके लिए. नहीं, ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता. वो अपनी मदर और सिस्टर और वाइफ को भी बिठा दे हाँ बोलिए टैटू शूट पे. नहीं नहीं, आई टोटली अग्री के है ना, ये समाज इतना इतना जितना दिखता है ना फेस पे उतना है नहीं, बट हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और हमारे आगे की जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है. तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो सोसाइटी में वो अवेयरनेस और वो जागरूकता दिला के और लोगों को अपने हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं, जनरेशन है, उनको सेफगार्ड कर पाए. नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप और मैं, चलो हम संभल गए, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है. हाँ, वो टेक्नोलॉजी savvy है. बहुत स्मार्ट है. आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट है. वो हमारी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मतलब आप भी इतना नहीं बोल पाए, मैं भी इतना बोल नहीं पाए, लेकिन आजकल के बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं. You have broken so many stereotypes in past, है ना? So what does women empowerment mean to you? I mean, woman is the main strength. मैं वुमेन को स्ट्रेंथ मानती हूँ. Yes. मतलब वुमेन Already empowered. empowered. मतलब वुमेन में इतनी स्ट्रेंथ है ना कि वो कुछ भी काम कर सकती है. Yes. At any age she can do. बट वो विल पावर होना चाहिए उसमें. हाँ. और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. और मैं यही सबको बोलूंगी कि आप हिम्मत मत हारो. कोई भी चीज आपको पसंद है, हाँ, कोई भी एज में कोई भी चीज पसंद है, उसके पीछे भागो. आपको अगर कार ड्राइविंग करना है, कुछ सीखना है, या कुछ एक्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, अब उसके पीछे इतना भागो जब तक आपको मिल नहीं जाए चीज, तब तक उसके पीछे भागो. तब तक जब तक सक्सेस आपके पीछे ना भागे. तब तक बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है. और कुछ एडवाइस ऐसा देना चाहेंगे फीमेल्स को कि इट्स नेवर टू लेट टू फॉलो द पैशन रिगार्डिंग दैट? आई विल टेल ऑल द वुमेन्स, सबसे पहली बात है कि आप जहाँ पे भी जाते हो ना, आपके मन में कितना भी दुख दर्द है, लेकिन फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि अगर फेस पे स्माइल है तो बस फिनिश. तो आप बहुत सुंदर दिखते हैं और सामने वाले को भी फेस ऐसा रहना चाहिए हमेशा. ऑलवेज स्माइल. कभी-कभी दांत भी दिखते हैं. एंड माय मोटो इन लाइफ इज टू स्माइल एंड मेक अदर्स स्माइल. वाओ, दैट्स रियली thoughtful and very nice gesture. आपकी फैमिली में you are very close to your daughter, right? Yeah. हाँ, तो your daughter has been a major source of strength. Yeah. So do you want to share some beautiful words for My daughter is not a daughter, she's my friend. Yeah, very nice. She's my guide, she's my philosopher, everything. Wow. Like she guides me. We share everything with each other. Like I don't think she's my And daughter. she's also social media influencer, Yeah. right? She's an architect. Oh, हाँ. Yeah, she's an architect and she's a blogger also. Blogger, हाँ. I've heard, I've seen also certain blogs She's of her. a blogger and like she has many courses. She's a tarot card plus she's a. Achha, she's also doing she's it. numerology also. She does. Oh, numerology. Yeah, she does many things. I have to take appointment. Yeah. मुझे काफी कुछ जानने की क्यूरियोसिटी रहती है. हर एरिया को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी रहती है. आपको पॉडकास्ट, आपको ये करने की जरूरत नहीं है टैरो कार्ड. हाँ. क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो तो आपको किसकी जरूरत नहीं है. आप टैरो कार्ड ही फेल हो जाएंगे. नहीं. राइट? नहीं, एक्चुअली हम जितना, क्योंकि जैसे मैंने आपसे जिंदा बात कर दिली रही से हूँ, रहते. हाँ, आपसे जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपको मैं जैसे रीड कर रही हूँ, आपको मैं जैसे देख रही हूँ, आप इतने स्ट्रांग है ना कि आप किसी डरोगे नहीं, सामने वाला डर जाएगा. बिल्कुल. आप ऐसे हो. सामने वाले सामने वाले ये डरेंगे नहीं, बाकी सब डर जाएंगे. What values do you hope to pass on to the next generations?
of yours. I will tell them कि please be careful of this world. Yes. The world is not so good as you think. हाँ. And always keep smiling and please आगे बढ़ते रहो और अच्छे काम करते रहो. हाँ जी. मैं वही बोलना चाहूंगी, अच्छे और काम करते डिवाइन से कनेक्टेड रहो. कनेक्ट. हाँ, और सबसे पहला जो भी सबसे पहला है अपने ऊपर वो है ऊपर वाला रब रखा. रब रखा. सबसे भरोसा करो उन पे. हाँ. फिर किसी और पे नहीं. वही हमने अपने आप को यूनिवर्स को सौंप के रखा है कि हमें पता है आप जो देंगे ना वो छप्पर फाड़ के देंगे. और जो भी वो करेंगे वो अपने अच्छे के लिए करेंगे. हाँ, तो अगर कुछ नहीं भी दे रहे हैं तो हमें उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि वो आगे हमें उसके मल्टीप्लाई करके देगा. जैसे आज हमारे मल्टीप्लाई पॉडकास्ट हो गए, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी तो वैसे छप्पर फाड़ के हमारी सारी चीजें होंगी. वेरी नाइस. और अगर आपको कुछ जो समझो, अगर आपसे कोई दूर हो जाता है, हाँ जी, आप बहुत रोते हो कि मैं से दूर हो गया, हाँ. मैं क्या करूं, मतलब कैसे. देखो, मतलब आप ये सोचो कि आपके फादर नहीं है, आपके मदर नहीं है, आप उनके साथ नहीं है वो. हाँ, मतलब वो मेरे पापा तो आज नहीं है, मैं बहुत पापा के क्लोज थी, वो नहीं है, लेकिन मैं उनसे बात भी करती रहती हूँ कभी-कभी. हाँ, मैं भी करती हूँ. मेरे मम्मी डैड पापा मेरे साथ नहीं है, मतलब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मम्मी आशीर्वाद दे रही है. आपको मैं बताऊंगी, मैं जब मेरे मॉम डैड थे तो मैं अंधेरे से डरती थी. बहुत. मैं भी. है ना. जब वो नहीं रहे और फिर अंधेरा मेरे आसपास आता है, अब मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मेरे साथ में हैं, मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो नाउ आई कैन ट्रैवल इन द डार्केस्ट प्लेस आल्सो विद द कॉन्फिडेंस एंड विद नो फियर. चलिए हम थोड़े फन पार्ट पे, वैसे भी हम फन करते रहते हैं, और थोड़े फन पार्ट पे जाते हैं. तो रैपिड फायर से शुरुआत करते हैं. वन वर्ड दैट डिफाइंस पूजा गंगवानी. Yes, one word. Only one word. Smiling face. Yes. Simple. Smile. Smile. Acting और social service. Social. हाँ. वही मैंने सोचा आपका तो आंसर ये होना. मैंने वो कंफ्यूज थी. Crown और compassion. Compassion. Favorite motivational quote. Smile and make others smile. Yes. Always. One dream still waiting to be fulfilled. A big ad on the big screen. Netflix. Yes. Yes. Same vision. Yes. And different mission. Yes. What could you change one thing in society today and what it would be? एक कुछ तो चेंज करना होगा आपको. बदलाव. मैं बहुत सारी चेंजेस करनी है. नहीं, एक बता दीजिए. अब रैपिड फायर है. सफाई अभियान. हाँ, ये तो बेसिक अभियान है जो मैं भी चला. जगह पे कचरा 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 मत करिए. तो प्लीज सफाई अभियान रखें ताकि लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहे, क्योंकि जिधर सफाई होगी वहाँ पे लोग स्वस्थ रहेंगे, जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ पे सब लोग बीमार होंगे. तो प्लीज स्वच्छ अभियान. हमारा घर स्वच्छ, हमारा भारत स्वच्छ. इसका मतलब ये नहीं कि घर में सफाई करके कचरा बाहर डाले. नहीं, नेबर के घर में डाले, ऐसे नहीं करना. हाँ, वो नहीं होना चाहिए. वो दोनों तरफ से होता है. अपना इमोशनल कचरा भी ना डाले, अपना फिजिकल कचरा भी ना डाले. ठीक है, नेबर के घर में या फिर बाहर. ठीक है, सफाई मतलब टोटल सफाई, जो हमें समाज में कहाँ कौन सा कचरा, कहाँ ग्रीन में क्या कचरा डालना है, ब्लू में क्या कचरा डालना है, ब्लैक और रेड में क्या डालना है, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करें. और इस तरह से हम अपने आप को रिच बना सकते हैं कल्चरली, है ना. तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया एडवाइस है. तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हमको आपको पूछना है कि इफ समवन इज वाचिंग योर इंटरव्यू एंड नाउ दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू द टफ टाइम, फेलियर्स और समथिंग, loneliness, believe that their dreams are over, so what message would you like to give them positively so that they get encouraged and revived? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी. I will tell them कि see, think today is your last day. Wow. Live that way. आज आपका आखिरी दिन है, आपको जो करना है खुशी से कर लो. तो वो आदमी को भी एंथू होगा कि अरे आज मेरा आखिरी दिन है, मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, वो भी. उसमें वो पूरी अपनी इच्छाएं कर लेगा. तो और वो उसको कुछ जिंदगी जी लेगा, उसको कुछ होगा भी नहीं. तो जो मेन है उसके दिमाग से वो टेंशन वो खत्म हो जाएगा. Yes, that's so thoughtful. Yes. क्योंकि ये एक दिन का पीएम होता है ना, एक दिन की जिंदगी समझ के चलो. मुझे अगर उन्होंने पीएम बनाया, हाँ, तो 10 दिन के अंदर सब आप मुझे सीएम बना देंगे क्या?
इतना तो डिजर्व कर सकती हूँ मैं, अच्छा बोल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। Thank you so much and let's move on to our next round. Yes. That is it's a psychology reading. आप तो टैरो रीडिंग करते ही है, ये तरीका टैरो है, इसके फेस से आपको पहचानना है साइकोलॉजी। हाँ. आप तो वो उसमें धुरंधर हो तो आप ये कर ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी और कोई मेरी राय नहीं है। बाप रे, हम दोनों सीरियसली आग लगा देंगे, ऐसी बातें करते हैं। एक उठा लीजिए। गणपति हाँ। बप्पा मोरिया मोरिया। और इस लोगों को दिखा दीजिए, इससे आपको क्या ध्यान क्या साइकोलॉजी आ रही है आपको माइंड में? इसमें आता है कि आप कुछ भी चीज संभाल के कीजिए, किधर भी उंगली मत कीजिए। सॉरी टू से दिस वर्ड, नहीं चलता है। अगर किधर भी आपने गलत पिन डाल दिया तो शॉक तो लगने ही वाला है। हाँ, तो बी केयरफुल, राइट, बी कॉशियस। यस। ये इससे किसी ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी लाइफ में उंगली कर करके? मैं बोलूंगी मेरी लाइफ में अगर उंगली करोगे, उंगली तोड़ के रख अब मैं वो पूजा नहीं हूँ, मैं बहुत बदल चुकी हो। बदलाव ही जिंदगी है। है। थैंक यू। और ये कुछ वर्ड्स है, 3 कार्ड उठाइए इसमें से। 3। हाँ, तो एकदम ऐसे फेर लेते हो एकदम। तो इतने छोटे? हाँ, ये वर्ड वाले है ना, इसमें कुछ साइकोलॉजी लिखी हुई है। आपको मैं पढ़ के बताती हूँ, ताकि क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना। When you hear a recording of your own voice and begin question who you are. हाँ, कौन हूँ मैं? हाँ, ऐसा एक्सप्रेशन आता है। कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ? कौन हूँ? मैं कौन हूँ? गाना आ गया, नजर मिला के जान ले गई। ये तो कुछ और गाना था, क्या रिलेशन है? When a teacher thinks that you are not listening, so she asks you a question, but you get that right. What is your expression? अरे, मैं तो तुक्का मारा था। ये तो सही निकल गया। एक्टिंग आती है आपको अच्छी? तो एक्टर को एक्टर है, हाँ, एक्टिंग तो आनी चाहिए। Yes, definitely. That's why we are here. मैं कर भी सकती हूँ, मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग भी कर लेती हूँ। अगर टाइम दोगे तो मैं कर भी सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल करेंगे ना। कुछ एक एक्ट आपका लेंगे, पहले ये कंप्लीट करते हैं। When it says 4 to 7 business days to ship your order, and you were counting on 4, but it looks like it's gonna be 7. What is your expression? Oh my God, ये कैसे हो गया? आजा, तू साल भर बाद आजा। नहीं, Let it go. कैंसल, ऑर्डर कैंसिल। नया ऑर्डर डालेंगे। मेरा उबर का ऐसे ही होता है, फिर बाद में उसका टाइम लिमिट बढ़ता जाता है। टाइम की बहुत परफेक्शन है मेरा। यस, टाइम इज, इफ यू वैल्यू टाइम इज नॉट मनी। टाइम इज मनी, बट इफ यू वैल्यू टाइम, आखिरी समय में आपको टाइम भी टाइम देगा। हाँ, कि बच्चे ले 2 मिनट और ले ले, जो बोल रहा है बोल दे। बिल्कुल। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। और we had lot of fun. I just have one. We just need your autograph now. That's the last ceremony. Autograph? हाँ, थोड़े से old schoolies है।